اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس، کیسے ہیں آپ سب پیارے بچوں؟ آج ہم اپنا اردو کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، اگر میں نہ ہوں تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے ہاتھ آتے تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ تقریر سن کر اس کے اجزاء اخذ کر سکیں گے۔ ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر وغیرہ پر مختصر عبارت سمجھ کر پڑھ سکیں گے۔ اپنی جماعت کے معیار کے مطابق املا لکھ سکیں گے۔ سادہ اور مرکب جملوں پر مشتمل عبارت سمجھ کر پڑھ سکیں گے۔ عبارت پڑھ کر تفہیمی سوالات کے درست جوابات دے سکیں گے۔ اسم ضمیر کی نشاندہی کر سکیں گے۔ معنی کے لحاظ سے مترادف الفاظ سمجھ کر یا بول کر لکھ سکیں گے۔ اپنی اور دوسروں کی پسند، ناپسند اور دلچسپیوں سے متعلق بات چیت کر سکیں گے۔ گھر اور اسکول میں پیش آنے والے چھوٹے موٹے مسائل کو حل بات چیت اتفاق رائے سے تلاش کر سکیں گے۔ کسی موضوع پر اپنے خیالات اور مشاہدات کو درست لب و لہجے، موقع محل کے مطابق حرکات و سکنات، صحیح تلفظ اور اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں گے۔ اپنے مسائل گھر، اسکول، محلے وغیرہ میں پیش آنے والے ناپسندیدہ واقعات، اشارہ، ترغیب یا لالچ وغیرہ کے بارے میں اپنے والدین اور اساتذہ کو بلا جھجک بتا سکیں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے کوشچن، بیٹا سوچیں اور بتائیں پرانے وقتوں میں رابطے کے لیے کون کون سے ذرائع استعمال کیے جاتے تھے؟ آج کل دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے رابطے کے لیے کن کن ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے؟ آج کل ہم دور بیٹھے مطلب کہ ایک ملک سے دوسرے ملک بات چیت کرنے کے لیے جیسے کہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، تو یہ سارے ذرائع ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹیلی فون 1876 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے ایجاد کیا؟ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، جیسے ٹیچر پڑھائی کریں گے آپ نے بھی اسی طرح اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ عزیز، جدید، خدمت، درکار، پوشیدہ، متاثر، دل دادا۔ میں کون ہوں؟ کیا چھوٹے کیا بڑے سبھی میرے دل دادا ہیں۔ دل دادا مطلب عاشق۔ میں لوگوں کو اتنا عزیز ہوں، عزیز مطلب پیارا، کہ وہ مجھے جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ میں دور بیٹھے لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی ہوں۔ آپ یقیناً پہچان گئے ہوں گے۔ جی، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، میں ہوں موبائل فون۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ مجھے مارٹن کوپر نے ایجاد کیا اور میں ٹیلی فون کی جدید شکل ہوں۔ شروع میں جو ٹیلی فون بنائے گئے تھے وہ تاروں کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم ان کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب سائنسدان اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے اور لوگوں کے ہاتھوں میں تاروں کے بغیر فون آ گیا۔ اس کا نام انہوں نے موبائل فون رکھا اور تب سے میں لوگوں کی خدمت میں پیش ہوں۔ میں ہلکا پھلکا ہوں اور آپ جہاں چاہیں مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں موبائل فون کا موجد کون ہے؟ بیٹا ہم نے ابھی پڑھا یہاں پہ مارٹن کوپر۔ موبائل فون سے کون کون سے کام لیے جا سکتے ہیں؟ موبائل فون سے ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں، جیسے کہ حساب کتاب کرنا، الارم لگانا، بات چیت کرنا اور آن لائن شاپنگ کرنا وغیرہ۔ طالب علموں کو ہوم ورک کرنے کے لیے جس مضمون کے بارے میں معلومات درکار ہوں وہ انٹرنیٹ کی مدد سے معلومات بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ضرورت کے وقت بات چیت کرنے کے لیے پیغام بھیجنے، حساب کتاب کرنے، الارم لگانے اور تصویریں کھینچنے کے کام آتا ہوں۔ میں دفتری کاموں میں بھی مدد دینے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سے لوگوں کو نت نئی معلومات بھی فراہم کرتا ہوں۔ لوگ میری مدد سے ہوائی جہاز، ریل گاڑیوں اور بسوں کی ٹکٹیں بک کروانے کے علاوہ طرح طرح کی ویڈیو گیمز بھی کھیلتے ہیں۔ دوستوں، میں دوسروں کے کام آ کر بہت خوش ہوں کیونکہ اصل خوشی تو دوسروں کے کام آنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ خوشی قائم رہے تو مجھے استعمال کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ وہ یہ کہ برقی آلات کے قریب جاتے وقت مجھے بند کر دیں۔ گاڑی چلاتے وقت میرا استعمال نہ کریں تاکہ حادثہ سے بچا جا سکے۔ مجھے اپنے دل کے قریب رکھیں مگر بائیں طرف کی بجائے دائیں طرف۔ بات کرتے وقت مجھے کان سے دور رکھیں تاکہ سننے کی صلاحیت متاثر نہ ہو۔ مجھ
बच्चों उम्मीद है कि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे ना। हमने सीखा, मोबाइल फ़ोन टेलीफोन की जदीद शक्ल है। मोबाइल फ़ोन दौरे हाज़िर की एक मुफीद ईजाद है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमेशा एहतियात से करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने इसकी किताब पढ़ाई की है, आपने भी करनी है और इसमें से इमला की प्रैक्टिस अपनी नीट कॉपी पे करनी है। अब हम इसकी मश्क हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज मायने: पोशीदा, छुपा हुआ, राब्ता, मेल जोल, ताल्लुक, अजीज, प्यारा। इसी तरह आपने इनके अल्फाज मायने याद करने हैं। सरगर्मी नंबर 2, सबके मुताबिक दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदेही रंग भरकर करें। मोबाइल फ़ोन मॉडर्न कॉपर ने ईजाद किया, दुरुस्त। मोबाइल फ़ोन टेलीफोन की जदीद शक्ल है, दुरुस्त। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने बाकी सरगर्मी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पूरी करें। यहाँ पे हमारे पास खाली जगह है, हमने इसमें दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह मुकम्मल करनी है। हम डैश फ़ोन को जहाँ चाहें अपने साथ ले जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन। बल्कि डैश के करीब जाते वक्त मोबाइल फ़ोन बंद करना चाहिए, आला। इसी तरह आपने बाकी सरगर्मी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 4, दिए हुए सवालात के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, इनके जवाब हम अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे। सवालात के जवाब लिखें। मोबाइल फ़ोन ईजाद करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि टेलीफोन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। मोबाइल फ़ोन के कोई से 3 बुनियादी इस्तेमालात बताएं। मोबाइल फ़ोन से मालूमात हासिल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से बातचीत कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हिसाब किताब कर सकते हैं। आपके ख्याल में टेलीफोन बेहतर है या मोबाइल फ़ोन? वजह बताएं। मोबाइल फ़ोन बेहतर है क्योंकि मोबाइल फ़ोन को हर जगह साथ लेकर जा सकते हैं। सवाल नंबर 4, आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किन मकसद के लिए करते हैं? मोबाइल फ़ोन ज़रूरत के वक्त हिसाब किताब करने, अलार्म लगाने, तस्वीरें बनाने के काम आता है। तो प्यारे बच्चों, आपने भी इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नीट कॉपी पे राइट करना है और इनको याद करना है। सरगर्मी नंबर 5, आप टेलीविज़न पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं। आपके छोटे भाई को भी इसी वक्त अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखना है। इस सूरत में आप क्या करेंगे और क्यों? कमरा जमात में साथियों को बताएं। तो प्यारे बच्चों, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप अपने छोटे भाई को वो प्रोग्राम देखने देंगे या नहीं, या आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आपस में बातचीत करें और बताएं कि हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एहतियात से क्यों करना चाहिए। लफ्ज़ों का खेल: मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें और हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से मालूमात हासिल करने के किसी ज़रिए का नाम लिखें। हमारे पास यहाँ पे लफ्ज़ हैं, हमने इनके हरूफ को अलग करना है और आखिरी हर्फ से हमने मालूमात हासिल करने के किसी भी एक ज़रिए का नाम लिखना है। य ग ग मीम पैगाम, तो आखिरी हर्फ है मीम, तो मीम से बना मोबाइल फ़ोन। म स य हमजा लाम मिसाइल, लाम से बना लैपटॉप। खतरनाक, तो आखिर में है काफ, काफ से बना कंप्यूटर। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने ये बाकी सरगर्मी भी हल करनी है। इसम ज़मीर: प्यारे बच्चों, आपको पता है इसम ज़मीर किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, इसम ज़मीर कहलाता है। जैसे कि वो, उन्हें, हम, तुम्हारा, उसका वगैरह, ये तमाम है इसम ज़मीर। यहाँ पे हमारे पास है एक पैराग्राफ। सारा स्कूल से घर वापस आ रही थी। वो सड़क पार कर रही थी कि उसने सड़क के किनारे एक जख्मी फाख्ता देखी। उसने फाख्ता को उठाया और उसे घर ले आई। उसने फाख्ता के जख्म पर मरहम लगाया, जिससे उसका जख्म ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जैसे कि वो, उस, ये अल्फाज इसम ज़मीर कहलाते हैं। सरगर्मी नंबर 8, खाली जगह में दुरुस्त इसम ज़मीर लिखकर जुमले मुकम्मल करें। डैश के चचा डॉक्टर हैं। उस डैश रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। उस्ताद साहिब ने हमें शाबाश दी। आपने इसी तरह ये सरगर्मी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 9, जुमलों के सामने दिए हुए अल्फाज के दुरुस्त मुतरादिफ लिखकर जुमले मुकम्मल करें। यहाँ पे हमारे पास जुमलों के सामने लफ्ज़ लिखे हुए हैं, हमने उनके मुतरादिफ इन खाली जगह में लिखकर खाली जगह को मुकम्मल करना है।
मोबाइल फ़ोन एक डैश इजाद है। फ़ायदेमंद का मुतरादिफ अल्फाज है मुफीद। प्यारे बच्चों, मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं हम मायनी अल्फाज को जिनके मायने एक जैसे होते हैं वो मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। तो फ़ायदेमंद का मतलब है मुफीद। सूरज के निकलते ही हर तरफ डैश फैल गया। रोशनी का मुतरादिफ लफ्ज़ है उजाला। इसी तरह आपने ये बाकी सरगर्मी भी हल करनी है। पशेमान का है शर्मिंदा। वसी का मतलब होता है खुला। साफ का मतलब होता है बनावट। सरगर्मी नंबर 10, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और नीचे पूछे गए सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। अहमद बेटा, आप इतनी देर से मोबाइल फ़ोन पर क्या कर रहे हैं? अम्मी जान ने अहमद को कुछ देर से मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर पूछा। अम्मी जान, मेरा एक नया दोस्त बना है। वो कह रहा है कि मैं उसे अपनी और अपने घर वालों की तस्वीर भेजूं। मैं मोबाइल फ़ोन से अपनी अच्छी सी तस्वीरें तलाश कर रहा था ताकि उसे भेज सकूं। प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने ये पैराग्राफ पढ़ा आपने भी इस तरह पैराग्राफ को पढ़ना है और इन सवालात के जवाबात इनके आगे लिख सकते हैं। सवाल नंबर 1, अहमद को मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर अम्मी जान ने क्या पूछा? अम्मी जान ने पूछा, अहमद बेटा, आप इतनी देर से मोबाइल फ़ोन पर क्या कर रहे हैं? सवाल नंबर 2, अहमद मोबाइल फ़ोन पर क्या कर रहा था और क्यों? जैसे अहमद फ़ोन पर अपनी अच्छी तस्वीर तलाश कर रहा था ताकि वो अपने दोस्त को भेज सके। प्यारे बच्चों, आपने इसी तरह बाकी सवालात के भी जवाबात लिखने हैं। कुछ नया लिखें। मोबाइल फ़ोन मार्टर कॉपर ने ईजाद किया। चंद जुमलों में लिख कर बताएं कि अगर आपको कोई चीज़ ईजाद करने का मौका मिले तो वो चीज़ कौन सी होगी और क्यों? नेज़, आप इससे क्या क्या काम लेना चाहेंगे? तो प्यारे बच्चों, ये आपने खुद सोचना है और फिर लिखना है कि आप कौन सी चीज़ ईजाद करना चाहते हैं और उसका क्या फ़ायदा होगा फिर। नई जमात ने स्कूल में पहले दिन के हवाले से अपने तासुरात लिखिए। उस दिन का अहवाल डायरी की सूरत में कॉपी में लिखें और जमात में साथियों को पढ़कर सुनाएं। प्यारे बच्चों, आप अपने एक दिन का हवाला कि आप स्कूल में या क्लास में कोई नया दिन होता है कि आप वहाँ पे क्या क्या करते हैं, तो आपने ये सारी रूटीन अपनी रफ कॉपी में लिखनी है और अपने फेलोज के साथ शेयर करनी है। आओ करें काम। इंटरनेट इंसान के लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद? इस मौजू से मुतलिक 1 मिनट की तकरीर तैयार कर अपने कमरा जमात में पेश करें। ये अपने फेलोज के साथ मिलकर ये आप सरगर्मी हल करेंगे। प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने तमाम सरगर्मियाँ हल की हैं आपने भी तमाम सरगर्मियाँ हल करनी है और इनको अच्छे से याद करना है। प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि तकरीर सुनकर इसके अज्जा अक्स कर सकते हैं, अपनी जमात के म्यार के मुताबिक इमला भी लिख सकते हैं, इबारत पढ़ के तफहीमी सवालात के जवाबात दे सकते हैं, इसम ज़मीर की निशानदेही कर सकते हैं, मायने के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज समझकर या बोलकर लिख सकते हैं, घर और स्कूल में पेश आने वाले छोटे छोटे मसाइल का हल बातचीत से तलाश कर सकते हैं, किसी भी मौजू से अपने ख्यालात और मुशाहदात को दुरुस्त लफ्ज़ लहजे के मुताबिक एतमाद से पेश कर सकते हैं। तो आपने इस लेसन को अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।